फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले आपका हेडिंग देखते हैं, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग चार्ज को पढ़ेंगे। तो इन प्रैक्टिस कूलाम्ब इज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 624 into 10 to the power 16 electron. 1 coulomb equal to charge of 624 into 10 to the power 16 electrons. Thus, the positive charge of 1 coulomb of a body means that it has a deficit of 624 into 10 to the power 16 electrons. अब दूसरी हेडिंग देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, आई इक्वल टू टी क्यू बाई डी टी। द यूनिट ऑफ करंट इज कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर। 1 एम्पियर ऑफ current is said to flow through a wire at any section. 1 coulomb of charge flow in 1 second. अब दूसरी हेडिंग देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी इज टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential equal to work done upon charge. The unit of electric potential is joule per coulomb or volt. Potential difference क्या होता है? The difference in the potential of two charge bodies is called potential difference. The potential difference between 2 points is 1 volt if 1 joule of work is done transferring 1 coulomb of charge from lower potential point to higher potential point. दूसरी हेडिंग देख लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस, इट मे डिफाइंड एज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट इज अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, जैसे इलेक्ट्रॉन थ्रो इट। The unit of resistance is ohm and represented by this. A wire said to have resistance 1 ohm, its potential difference 1 volt, 1 volt across it, its in the cause 1 ampere of current flow through it, R equal to rho L by A ohm। rho क्या है, रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल हो गया लेंथ, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू रो एल बाई ए इफ एल इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन आर इक्वल टू रो। की पॉइंट्स देख लेते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 मीटर लेंथ of wire of material having area of cross section of 1 meter square. Also it may also defined as the resistance between opposite faces of a meter cube of the material. The unit of specific resistance is ohm meter. अब इसके बाद की हेडिंग देख लेते हैं, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर हो गया रेजिस्टेंस, तो जी इक्वल टू 1 बाई रो ए बाई में एल। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, जी इक्वल टू रो ए बाई में एल। रो क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वेयर रो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेन पर मीटर।
अगला हेडिंग देख लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। let a conductor of resistance R naught at 0 degree Celsius is heated to T degree Celsius. Its resistance RT after heating is given by RT equal to R naught 1 plus alpha naught T, where alpha naught temperature coefficient at 0 degree Celsius and alpha naught equal to RT minus R naught upon में RT naught into T. Hence temperature coefficient of material is increases in the resistance per ohm. Original resistance per degree Celsius rise in temperature. Effect of temperature of resistance. The resistance of pure metal increases with increase the temperature. Hence they have positive temperature coefficient of the resistance. The resistance of insulator, electrolyte, semiconductor decreases with the increased temperature. Hence they have negative temperature coefficient of the resistance. The resistance of alloy increases with the rise in the temperature, but increase is very small and irregular. For some high resistance alloy, manganese constant, Eureka, the change in resistance is practically negligible over wide range of the temperature. नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। The rate at which work is done in an electric circuit is called electric power. इलेक्ट्रिक पावर का ये फार्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन बाय में टाइम, तो P इक्वल टू वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर वाट। अब इसके बाद की हेडिंग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, द टोटल वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू वी आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी, किलोवाट आवर। नोट दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर kWh of electric energy expended in a circuit if 1 kilowatt power supplied for 1 hour। अब इसके बाद की हेडिंग देख लेते हैं, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दिया हुआ है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज ज़ीरो। तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इज ज़ीरो, अलजेब्रिक सम इज ज़ीरो। एंड सेकेंड लॉ जिसको केवीएल बोलते हैं, इन एनी क्लोज्ड सर्किट और मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ज़ीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू ज़ीरो। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये सेल हमारे सीरीज में ग्रुपिंग किए गए हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग इज यूज्ड व्हेन बैटरी रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा फार्मूला, इस कंडीशन में फार्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई बाई में आर प्लस एन आर। ई क्या है, एक सेल की ईएमएफ है और जितने सेल लगे रहेंगे नंबर ऑफ सेल्स हो गए एन। आर क्या है कि सर्किट का रेजिस्टेंस, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग इज यूजफुल व्हेन
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू बैटरी रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, ई आई इक्वल टू ई बाई में आर प्लस आर बाई में एम। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इस कंडीशन में हमारा फार्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू एम एन बाई एम एन ई बाई में एम आर प्लस एन आर एम्पियर्स। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके लिए ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा।